विचार देता है शैतान। What do? क्या करेंगे फिर? Open your mouth. अपना मुंह खोलो। Treat every thought as if it's coming from a person. हर एक विचार के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे वो एक व्यक्ति की ओर से आ रहा है। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? Thought is the language of the spirit realm. आत्मिक दुनिया की भाषा विचार है। You know, one day I got up in the morning and I just got this thought, I'm feeling so low. एक दिन मैं सुबह सुबह उठा और मुझे विचार आया कि मैं बहुत ही निराश महसूस कर रहा हूँ। Suddenly I knew what devil was doing. मुझे पता लग गया That's शैतान how क्या he कर रहा brings depression. है। ऐसे ही वो डिप्रेशन लाता है। He tells you, वो आपसे कहता है, I'm feeling, and then you'll be like, हाँ लो तो लग रहा है. and then you agree with that thought. Oh, I'm feeling so low. Oh, I'm feeling so low. Oh, The more he tells you, the more you believe it. जितना वो आपको कहता है उतना आप मान लेते हो। And I said, I'm not going to believe it. I'm going to act against it. So I began to dance in my room. और मैंने कहा मैं इस झूठ को नहीं मानूंगा, इसके बिल्कुल विपरीत करूंगा। मैं कमरे में नाचने लग गया मैं। I said, devil, it is written. मैंने कहा शैतान ये लिखा है। In his presence is the fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। I never usually speak about that, but I'm telling you, some of you guys will never know the spiritual battles pastors and leaders have to face. मैं इसके बारे में कभी बात नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जान लें कि आप में से लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह की आत्मिक लड़ाई पास्टर्स और अगुए लड़ते हैं। Do you think the enemy will not come and hit the shepherd because he knows if he goes down, the entire sheep will scatter? क्या आपको लगता है कि दुश्मन चरवाहों के विरोध में नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है अगर चरवाहा हट गया रास्ते से तो भेड़ें बिखर जाएंगी। Amen. That's why. If I would have not found my life on the word and I would have not been praying in tongues, I won't be standing here. इसीलिए अगर मैंने अपना जीवन वचन पर ना बनाया होता, अन्य भाषा में अगर मैं प्रार्थना ना करता, तो मैं यहाँ ना खड़ा होता। And then you get so nice emails and messages. और फिर आपको इतनी अच्छी ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं लोगों से। But Jesus said, if they have hated me, they're going to hate you. लेकिन यीशु ने कहा उन्होंने मुझसे नफरत की, तुमसे भी करेंगे। Amen. We are not doing this because someone would like us or hate us. We are doing this because God called us to do it. And that's all that matters. हम यहाँ इसीलिए नहीं हैं क्योंकि कोई हमें पसंद करे, कोई ना पसंद करे, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया और इसलिए हम ऐसा करेंगे। Amen. If you hate me, I'll still be standing here. If you love me, I'll still be standing here because I'm standing on the word of God. अगर आप मुझसे नफरत करेंगे तो भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर प्यार करेंगे तो भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पर खड़ा हूँ। Amen. But you know what we can do? पर पता है हम क्या कर सकते हैं? Let's all stand together. आइए हम इसमें साथ में खड़े हो सकते हैं मिलकर। Amen. आमेन। And get this nation saved for Jesus. और इस देश को यीशु के लिए बचा लें। Amen. I believe we are the generation that are going to see this nation transform. मैं ये मानता हूँ कि हम वो पीढ़ी हैं जो इस पूरे देश को बदलते हुए देखेंगे अपने सामने यीशु के लिए। That is going to happen. ऐसा ही होगा। That is going to happen. ऐसा ही होगा। Amen. आमेन। So are you ready? क्या आप तैयार हैं? God is about to do amazing things in our midst. परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत चीजें करने वाला है। You're seeing, we are getting amazing testimony. Cancer being healed. You saw that little boy, a creative miracle. The retina was detached. The retina got attached without surgery. आप परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत चीजों को कर रहा है। कैंसर ठीक होता है। आपने देखा वो उस बच्चे का चमत्कार, जिसकी आंख का जो रेटिना है वो अलग था, सर्जरी के बिना ही वो वापस अटैच हो गया। Why? कैसे? Because God is alive. क्योंकि परमेश्वर जीवित है। Because the God that we serve is a living God. क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है। Amen. आमेन। Amen. And divine health is our portion. और अलौकिक स्वास्थ्य हमारा हिस्सा है। Divine health is our portion. अलौकिक स्वास्थ्य हमारा हिस्सा है। Amen. So if you're sick in your body, अगर आप अपने शरीर में बीमार हैं, be ready to receive your healing. तो तैयार हो जाए अपनी चंगाई को लेने के लिए। If you've been mentally oppressed, अगर आप मानसिक रूप से सताए गए हैं, be ready as the anointing of the Holy Spirit sets you free. तो तैयार हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको आजाद करता है। Amen. Can you all stand up, please? अपने Thank स्थान you, पर खड़े हो Lord जाएं। Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Shabarala hashendo garala base korala baba.
Yabala hala barala sakatala barala baba ba shatatara brala. Habala hashatanama. Thank you, Lord Jesus. How many people are taking a medicine for anything? Like you're sick in your body, you're taking a medicine. Can you show me your hand? कितने लोग किसी चीज के लिए दवाई ले रहे हैं, अपने शरीर में बीमार हैं और दवाई ले रहे हैं किसी कारणवश? अपना हाथ उठा के Okay, you दिखाएं। have come here with expectation of healing. और चंगाई की उम्मीद के साथ आप आज यहाँ आए हैं। Okay, okay. So I just want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, don't expect a feeling, expect healing. ये उम्मीद ना करें कि आपको कुछ महसूस होने वाला है, चंगाई की उम्मीद करें कि आप चंगे होंगे आज। Maybe you'll feel tingling, maybe you'll not feel tingling, but that doesn't mean that God is not going to heal you. हो सकता है अपने शरीर में आपको कुछ गर्म सर्द महसूस हो सकता है कुछ भी महसूस ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको चंगा करेगा आज। Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. प्रभु की Praise God. स्तुति हो। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Sabrahate kara. Yala bala hashande gedene mezekere. I want you to keep your right hand on the part where you're sick. मैं चाहता हूँ अपना दाहिना हाथ उस हिस्से पर रखें जहाँ आप बीमार हैं। Come on. And I want you to know that you receive healing by grace. You have not earned it. God, it's a free gift for everyone. और मैं चाहता हूँ आप ये जान ले कि आप चंगाई एक मुफ्त के तोहफे की तरह अनुग्रह से पाते हैं, आप उसको कमाते नहीं हैं। It's a free gift. ये एक मुफ्त का तोहफा है। Amen. So come on, just receive your healing. अपनी चंगाई को Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority over every spirits of infirmity, मैं हर एक रोग और बीमारी की आत्मा पर अधिकार लेता हूँ। every spirit that is bringing them pain and affliction. हर एक आत्मा जो उनके जीवन पर दर्द और सताव लेकर आती है उस पर अधिकार लेता हूँ। Father, I release the presence of the Holy Spirit. पिता मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को उनके ऊपर खोलता हूँ। In Jesus' name, यीशु के नाम में yes. From the crown of your head तुम्हारे सर से लेकर to the soles of your feet, तुम्हारे पांव तक God's power goes in your system, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके शरीर में उतरती है, setting everything in divine order. हर एक बात को अलौकिक रूप से सही करते हुए I command kidneys to be healed, मैं अधिकार लेता हूँ, किडनीज को कहता हूँ ठीक हो blind जाओ, eyes to be healed. अंधी आंखों को खुलने के लिए In the बोलता हूँ। name of Jesus, यीशु के नाम में digestive system to be healed. पाचन के जो सिस्टम है वो चंगे हो जाएं, Headaches go in Jesus' name. सर के दर्द छोड़ के चले जाएं। In the name of Jesus, right यीशु now, के be नाम में healed. इस समय चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ। It's a free gift. Come on, receive your ये एक healing. मुफ्त का तोहफा है, अपनी चंगाई को Come ले on, लो, receive your healing. अपनी Receive your चंगाई को ले healing. लो इस समय, Receive your healing. चंगाई को ले लो In Jesus' name, यीशु के नाम में। every unclean spirit that is hindering this healing, I command you, come out in Jesus' name. हर एक अशुद्ध आत्मा जो लोगों के जीवनों को सताती है बाहर आ जाओ इस समय यीशु के नाम में। Come on, be healed. Be चंगे हो healed, जाओ be healed, be healed. Now in Jesus' name, समय now यीशु के in नाम में। Jesus' name, now in Jesus' name. चंगे हो जाओ। Hallelujah. Come on, I want you to look at me. मैं चाहता हूँ मेरी ओर देखो। Faith without action is dead. बिना काम के विश्वास मुर्दा है। Hear this. सुनिए, Jesus told a man who had a withered hand, stretch forth your hand. यीशु ने एक ऐसे मनुष्य से जिसका हाथ ही नहीं था उससे कहा अपने हाथ को आगे बढ़ा। हाथ withered था, सूखा हुआ था. सूखा हुआ हाथ था उसका। यीशु ने कहा अपने हाथ को आगे बढ़ा। What did Jesus tell? Jesus tell him to do something that he couldn't do. यीशु ने उससे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो वो नहीं कर सकता था। Stretch forth your hand. अपने हाथ को आगे बढ़ा। Come on, quickly check your bodies and do something that you're not able to do अपने before. शरीर को इस समय परखें और कुछ ऐसा करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे। Come on. इस Faith समय without अपने शरीर को action परखें। is dead. बिना काम के विश्वास मुर्दा है। Come on, check your bodies. अपने शरीर को परखें इस समय। Come on. Father, I command paralysis to be healed, मैं आदेश देता हूँ इस समय पैरालिसिस ठीक हो जाए, eyesight to be restored. आंखों की दृष्टि ठीक हो जाए। In Jesus' name. So do something, yeah. If they can mention it, we're all. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. People who got healed, I want you to. Those who got healed, show me your hand. जो लोग चंगे हुए अपने हाथों को उठा के दिखाएं इस समय। Come on, check your bodies. Those अपने who got शरीर को healed. परखें। Yeah, you. Can you come on the left side and just testify what the Lord has done? जो चंगे हुए हैं वो उस तरफ आ जाएं और Volunteers, अपनी गवाही दें। just lift your hand so that people, अपने volunteers can हाथों को see who उठाएं you are. ताकि वॉलंटियर्स देख पाएं आप कौन हैं। Yeah. जो चंगे हुए अपने हाथों को Volunteers, उठाएं। there are 2 people here. Yes, a sister there in the middle, a sister there at the back.
Yes. Yeah, come on, check your bodies. अपने शरीर को परखें इस समय. Hallelujah. Come on, volunteers, quickly go and bring them. वॉलंटियर्स जल्दी से उनको लेके आए. Okay, tell us what is happening and then. Guys, we want to close the service before 2, so I want your cooperation. हम 2 से पहले सभा को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप कोऑपरेशन करें हमारे साथ. Sandana mahe ralaba shatana mamahandene mede ribarala hatana mazande gedene. And if you're here, come on. The power of God is in this place to set the captives free. अगर आप यहाँ हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य जगह मौजूद है जो बंधन में पड़े हैं उनको आजाद करने के लिए. Sanda bahate katala brala base lebala hashata kabarala hashande rala hashande ribrala bashate ketere brele gendanama. Hallelujah. 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 Come on, check your bodies. Keep अपने checking शरीर your को body. परखते हैं इस समय. Do something that you're not able to do before. कुछ ऐसा करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे. Yes, sorry, tell us. Yes. Yeah. सो हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ लाइव गवाहियाँ सुनेंगे, लाइव टेस्टिमनी सुनेंगे इस समय. और हमारे साथ 2 बहनें हैं यहाँ पर जिनके जीवन में परमेश्वर ने चंगाई का और भी बड़े बड़े काम किए हैं. सो हमारे साथ पहले सिस्टर विदिशा हैं जो हमारे साथ गवाही देंगी. आइए सिस्टर. सो सिस्टर विदिशा, जल्दी से बता दीजिए आप FOLJ कब से आ रही हैं और आपने FOLJ में के बारे में कैसे जाना. Right, so FOLJ church में January February 2023 this year से आ रही हूँ, and I saw a video on social media regarding the FOLJ church and that led me here. उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था जिसके द्वारा वो यहाँ आए. तो आपके शरीर में कोई हेल्थ इश्यू था जब आप यहाँ पे आई, और आप कब से उस कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रही थी अपने शरीर में, और उस हेल्थ इश्यू के कारण क्या हो रहा था आपके शरीर में. Right, so 2020 में I completed my schooling and डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया था टू वेट लिफ्ट, टू ट्रेन, बिकॉज मेरी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो जैसे ही मैं वो करती थी 10 minutes into the process I used to get like terrible pain, मतलब excruciating pain in my abdomen and sometimes in my back area. So the ordeal was that I could not even stand up during that time. I had to lay in my bed. I used to scream. My whole family used to surround me that what is happening to her. It was that bad for me. So आपने सुना कलीसिया, हम लोग के कभी भी दर्द होता है पेट में या कुछ, हम लोग को बहुत तकलीफ होती है. तो ये सिस्टर को कुछ भी एक्सरसाइज करने में बहुत भीषण दर्द हो रहा था. शी वॉज एक्सपीरियंसिंग एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन विच इज इनडिस्क्राइबेबल. नाउ दिस इज अ टेस्टिमनी फॉर समवन हु मे बी सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेन इन देयर एब्डोमेन और देयर बैक. सो तो आपने इसकी वजह से क्या हो रहा था? आप कहीं जा रही थी, आ रही थी, आने जाने में कोई तकलीफ हो रही थी आपको? इसकी वजह से मेजर चीज़ थी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मैं घर के बाहर कर ही नहीं सकती थी. माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी या बोलते थे कि मैं पार्क चल लो या जिम सेशन चल लो. नथिंग. आई कुड नॉट अफोर्ड टू गो आउट बेसिकली. तो आप डिड यू गो टू अ डॉक्टर या फिर आपने कोई मेडिकल चेकअप या मेडिकेशन कराया? सो एवरी सिंगल होम रेमेडी वी ट्राइड इट आउट एंड होम्योपैथी वी ट्राइड. But nothing used to work because nobody could tell me what was wrong with me, why it was happening. So that was really frustrating. That am I supposed to live like this? तो आपने बोला 2020 से आपको ये तकलीफ होना शुरू हुई थी. सोचिए 3 साल तक ये दवाई या फिर और अलग अलग नुस्खे करती रही, लेकिन इनको इस दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा था. तो फिर आप ये बताइए कि आप FOLJ आई और आपने FOLJ में क्या अनुभव किया, यहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? So like 2 to 3 months in, there was a service regarding deliverance and healing, and Pastor Ankit said that we are going to pray over you. And as he was praying, I felt like a white light go through my stomach. Wow. Amen. Come on. हीलिंग डिलीवरेंस की सभा में उनको ऐसा लगा जैसे एक सफ़ेद प्रकाश उनके शरीर में से गुजरा है होकर. And at that moment, I could not test anything within the service, but I was so sure in my heart that I was healed. So I came in front of the church and declared that I am healed. So next time, like I went home and tried. Since it's been like 2 to 3 months since then, that pain has not come near me. कलीसिया, हीलिंग एंड डिलीवरेंस संडे को चंगाई प्राप्त करी सिस्टर ने बाय फेथ.
और उनके शरीर में पूरी तरह चंगाई आ गई। अगले दिन से वो एक्सरसाइज करने लगी बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन के। इनका शरीर, इनका पेट और इनका बैक पूरी तरह ठीक है और आज 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं इस बात को, पूरी तरह ये चंगी हो चुकी हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस चंगाई के कारण आपके परिवार वालों के ऊपर कैसा असर पड़ा? This is the most important thing. My family is not yet believing in Christ, but I know that I shared my healing with them, and my mother has her own problems. So this has definitely opened a door for her to come into this church and receive her healing. And I see that she will be sitting there accepting Christ and praising God. देखा परिवार, परमेश्वर का उद्धार का कार्य सिर्फ चंगाई तक सीमित नहीं रहता, परंतु वो पूरे परिवार को चंगा कर रहा है, उनके दिलों में चंगाई ला रहा है। और इसके साथ साथ क्या क्या अनुभव हुए आपके साथ, जल्दी से बता दीजिए। Since FOLJ, I've been like 6 to 7 months, and I've received so many blessings and direction in my career as well. And I could not pray in tongues. I did not know what praying in tongues was, and it was one service only in which I got to know what praying in tongues was and received the gift as well. So Praise God, hallelujah. I have been making it my lifestyle since then to pray in tongues. So परमेश्वर का कार्य थोड़ा बहुत नहीं है, सिर्फ चंगाई तक सीमित नहीं है, सिर्फ परिवार वालों तक नहीं, परंतु देखिए किस तरह से आत्मा से भर कर यहाँ पे सिस्टर आ रही हैं। सो प्रभु को स्तुति करें, तालियां बजाएं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू सिस्टर विद्या फॉर शेयरिंग योर टेस्टिमनी। और हमारे साथ सिस्टर लक्ष्मी रावत हैं, इनके जीवन की भी गवाही हम सुनेंगे। तो सिस्टर जी, आप FOLJ में कब से जुड़ी हुई हैं, हमें बताएंगे? मैं पिछले साल से FOLJ में जुड़ी हूँ। थोड़ा पास। हाँ, पिछले साल 2022 से मैं FOLJ में जुड़ी हूँ। जब से मैंने यहाँ पे आना शुरू करा है, मेरे जीवन में बहुत से कार्य हुए हैं और मैं इतनी आनंदित रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ कि मुझे देखने वाले ये कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में इतनी खुशी कैसी है। Praise वो God. मैं सारी महिमा अपने पिता परमेश्वर को प्रेज देती गॉड। तो ये बताइए कि आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को लेके क्या घटी हुई थी और आप उसकी वजह से किस तरह से आपने सफ़र किया, शरीर में आपने किस तरह से सहा, और ये कब से हो रहा है? मेरे को पिछले 6 मंथ से लेग में नस जी। में पेन होता था। जी। जब मैं कपड़े धोती थी बैठ के तो मुझे बहुत मतलब उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब मैं इस तरीके से बैठ के कपड़े धोती थी, जब उठती थी तो बहुत ही धीरे से उठती थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी खड़े होने में। So sister is saying that since the last 6 months or 6 months ago, she realized that as she was bending and getting up while washing clothes, she was experiencing a pain in her right leg. Her bones and her nerves were suffering an excruciating pain. So sister जी, ये बताइए कि आप डॉक्टर के पास गई, आपने कोई दवाई लगाई, बाम लगाया, कुछ इलाज कराया इसको? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि हमारे पास जो वचन के साथ हमें जो सिखाते हैं, जो विश्वास के साथ वो हमें कहते हैं कि तुम इसे वचन को पढ़ो और इसमें मनन करो, तो मैंने वही करा। वचन के उससे बोलती गई कि मैं हील हो चुकी हूँ। तो मैंने ये ठान लिया कि मेरा डॉक्टर सिर्फ प्रभु है, प्रभु इसके अलावा मुझे और कोई ठीक नहीं कर सकता। से बहन ने विश्वास की आत्मा को पकड़ लिया और इन्होंने दवाई या डॉक्टरों का सहारा ना लेकर विश्वास से वचन पर खड़ी रही, जो यहाँ से पास्टर अंकित हमें सिखाते हैं। तो ये बताइए कि आपको असली में चंगाई कब मिली यहाँ पर? असली में चंगाई तब मिली मुझे जब पास्टर अंकित यहाँ पे से हीलिंग प्रेयर कर रहे थे कि बीमार, जितने लोग बीमार हैं कैंसर के, मतलब हर चीज़ के लिए, तो बोलते जिनके नसों में, हड्डियों में जो पेन है वो अपने लिए विश्वास के साथ इसे ग्रहण करें। तो मैंने उसी समय फेथ के साथ, विश्वास के साथ वो रिसीव करा और मैंने वो अपने लिए ले ली चंगाई। तो उन्होंने उसी समय बोला कि आप मतलब उसी समय बैठ के देखिए, सभी लोगों को चेक करने के लिए बोला था, तो मैंने चेक किया तो उसी समय मेरा वो चला। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सभी जिनके पैरों में तकलीफ है, आप सुन रहे हैं ना, इस सिस्टर ने तुरंत चंगाई अपनी प्राप्त करी और उन्होंने चेक करके देखा और वो बिना दर्द के उठ बैठ रही थी। तो आज आप अपनी भी चंगाई प्राप्त कर सकते हो जैसे इस सिस्टर ने प्राप्त किया। अब ये बताइए सिस्टर जी, प्रभु ने इसके अलावा आपके जीवन में और भी गवाहियाँ दी हैं, तो उसमें से जो आपके जीवन में आर्थिक
स्थिति में जो आपको उभारा है उसके बारे में ज़रा बताएंगे कि क्या हुआ था आपके हाँ लाइफ जी, में? मैं ज़रूर बताऊंगी कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिससे मैंने किसी का पैसा देना था 25,000 करीब, लेकिन मुझे मतलब उसका फ़ोन आके वो मुझे बहुत मेंटली अपसेट हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी प्रभु का धन्यवाद करती मन मन में। तो मैं संडे के दिन की बात है, मैंने लाइव सर्विस देख रही थी घर में बैठ के, तो जिसमें पास अंकित मतलब यही सब रिसीव कर रहे थे कि फेथ के साथ अपने फाइनेंस ही रिसीव करो। वो मैंने फाइनेंस ही रिसीव करी। रिसीव करने के बाद संडे के दिन मैं उसी दिन उसके घर पे गई। वो मुझसे करी मुझे नहीं पता, कहीं से भी तुम मुझे लाके पैसे दो। So this sister had taken money from someone, and that person was asking the money immediately, but she was not able to give. She was watching the live service, and Pastor Ankit was sharing about financial prosperity and how God wishes to prosper us. She heard that. She went to that sister. She said, I don't know where the money is going to be arranged from. And so she was just asking God, how will it be arranged? And so she was just asking God, how will it be arranged? हाँ फिर आगे क्या हुआ कि कैसे आप इस आर्थिक स्थिति से बाहर निकले? तो आगे ये हुआ, मैंने जब फेस से रिसीव संडे के दिन मैंने रिसीव करा घर में, जब वो पीरियड वगैरह कुछ भी रिसीव करा, जैसे मैं घर पे उसे रिसीव करती थी उसी तरीके से परमेश्वर मुझे भी छूता था। वो सब मैंने फेथ के साथ रिसीव करा। फिर उसी दिन नेक्स्ट मंडे को जी क्या बोले जी मंडे को ना? हाँ जी। हाँ। तो फिर मंडे को क्या बोलते हैं, मंडे को मेरे पड़ोस में कोई रहते हैं, तो वो कह रहे भाभी आपको मतलब इन्होंने पैसा देना है, वो बुला रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जब मुझे बुलाया तो कह रहे भाभी मैं आपके हस्बैंड को फ़ोन करके 2 दिन से बोल रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं गई तो उन्होंने बोला कि मैं ऑनलाइन आपको 50,000 रुपीज़ ऑनलाइन पे फ़ोन कर देता हूँ। So देखिए किस तरह से परमेश्वर ने अगले दिन ही, जैसे इन्होंने रिसीव किया उसके अगले दिन ही जो अमाउंट इनको देना था उससे ज़्यादा परमेश्वर ने इनके अकाउंट में इनको ट्रांसफ़र करवा दिया। सो प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का कि ना सिर्फ चंगाई परंतु आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक समस्या से भी इनको छुटकारा मिला है। सो प्रभु यीशु मसीह को स्तुति दें। और आप में से जो कोई सुन रहा है यहाँ पर, आप भी इस समय विश्वास करें कि प्रभु आपको इस समय चंगा करता है। धन्यवाद सिस्टर जी, आप थैंक यू। थैंक यू सो मच।